بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل رزاق ٹی وی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہی ہمارا حصہ بن جائیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی ملک کا ایک شہزادہ تھا، ماں باپ کا بڑا لاڈلا۔ وہ کبھی اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ جب وہ جوان ہوا تو ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، ابا جان، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا کی سیر کروں، بھانت بھانت کے آدمیوں کو دیکھوں، بھنورے میں کب تلک پلوں گا۔ بادشاہ نے جواب دیا، بیٹا، سفر میں بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا جانے کیا بیتے، اس خیال سے باز آؤ۔ مگر شہزادہ ضد کا پورا کب سنتا تھا، مچل گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنی چھاتی پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ شہزادہ اپنے دوستوں وزیر زادے کو ساتھ لے کر شکار کا سامان لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ابھی اپنی راجدھانی سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے ایک خوبصورت ہرن نظر آیا، زرپفت کی جھول، چاندی کی سنگوٹیاں۔ شہزادہ اس کو دیکھتے ہی بھڑک گیا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن نے جو ایک سوار کو اپنا پیچھا کرتے دیکھا تو ایسی کلانچے لگائی کہ شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ شہزادہ تھک گیا تھا، پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھی۔ ایک جگہ ٹھہر کر وزیر زادے سے کہا، بھائی چلو بھر پانی ہو تو جان میں جانا۔ وزیر زادہ بولا، حضور یہاں پانی کہاں، ذرا ہمت کر کے آگے چلیے، شاید کنواں یا ندی مل جائے۔ کیا کرتے آگے بڑھے۔ چلتے چلتے دور سے ایک دریا موجیں مارتا ہوا دکھائی دیا۔ شہزادے کا برا حال تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وزیر زادے نے دریا کے کنارے پہنچ چھاگل کو دریا میں ڈالا۔ چھاگل کسی چیز سے ٹکرائی۔ ہاتھ ڈال کر جو دیکھا تو سونے کے چوکٹے میں لگی ہوئی کسی کی ایک نہایت خوبصورت رنگین تصویر تھی۔ اس نے جھٹ تصویر کو لے کمر میں اڑس لیا اور پانی سے چھاگل بھر شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مگر شہزادے نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ پانی کی چھاگل ہاتھ میں لے کر پوچھا، وزیر زادے، سچ بتا، وہ کیا چیز تھی جسے تو نے کمر بند میں چھپایا ہے؟ جس قدر وزیر زادے نے ٹالنا چاہا، شہزادے کا شوق اتنا ہی بڑھتا گیا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے وہ تصویر شہزادے کے حوالے کر دی۔ تصویر کا دیکھنا تھا کہ شہزادے نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا کہ اگر میری زندگی چاہتے ہو تو جس کی یہ تصویر ہے اس کا پتہ لگا۔ وزیر زادے نے بہت سمجھایا کہ حضور کیسی بچپن کی باتیں کرتے ہیں، کیا جانے یہ تصویر کیسی ہے؟ ایسا ہی ہے تو اپنے گھر چلیے، سوچ کر کوئی صورت نکالیں گے۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی، بلکہ الٹا ناراض ہو گیا۔ ناچار وزیر زادہ تصویر لے اللہ کے توکل پر ایک طرف روانہ ہوا۔ شہزادے نے وہیں دریا کے پاس ایک درخت کے نیچے ڈیرا ڈال دیا۔ شہزادہ رات کو لیٹا ہوا اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا کہ دریا کے بیچ میں اس کو روشنی سی معلوم ہوئی۔ روشنی برابر تیز ہوتی جاتی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، دیکھتا کیا ہے، ایک بہت بڑا اژدہا جس کے سر پر من ہے اور پیٹھ پر وہی تصویر والی شہزادی سوار ہے، آہستہ آہستہ خشکی کی طرف چلا آتا ہے۔ شہزادہ حیران دل میں سوچ رہا تھا، یا اللہ، یہ اژدہا کیسا ہے اور یہ شہزادی جن ہے یا انسان؟ اتنے میں اژدہے نے دریا سے نکل کر اپنا من ایک بہت بڑے گھندار درخت کی جڑ میں رکھ دیا۔ شہزادی بھی اس کے قریب بیٹھ گئی اور اژدہا جنگل کی سیر کرتا رہا۔ صبح ہونے کو ہوئی تو اژدہا آیا، من کو سر پر رکھا، شہزادی سوار ہوئی اور دریا میں جا کر غائب ہو گیا۔ شہزادہ یہ تماشا دیکھ کر اپنی جلد بازی پر بہت پچھتایا کہ ناحق وزیر زادے کو پریشان کیا۔ شہزادی تو یہی ہے، وہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا؟ مگر اب کیا ہوتا تھا؟ اب آدھی رات کو روز اژدہا دریا سے آتا، شہزادی بھی اس پر سوار ہوتی اور صبح کو چلا جاتا۔ شہزادہ بہت تڑپتا تھا کہ شہزادی سے بات کرے، لیکن اژدہے کے ڈر سے جو رات نہ ہوتی تھی۔ ایک رات خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اژدہا بہت دور نکل گیا، اتنی دور کہ نہ شہزادہ اس کو دیکھ سکتا تھا نہ وہ شہزادے کو۔ شہزادے کو موقع ملا اور وہ دبے پاؤں اپنے درخت کی اوٹ سے نکل کر شہزادی کے پاس پہنچا۔ شہزادی نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، شکار کھیلتے کھیلتے ادھر آ گیا، تم اپنا حال بتاؤ، پری ہو یا آدمزاد، اور اس اژدہے کے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ شہزادی بولی، میں بھی ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، میری عمر کوئی 10 برس کی ہوگی۔ شام کے وقت اپنے محل میں کھیل رہی تھی کہ بڑے زور کی آندھی آئی، میں گھبرائی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے میری کولی بھر لی، ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو نہ اپنا محل تھا نہ اپنے نوکر چاکر، اور یہ جن جسے تم اژدہا بنا ہوا دیکھتے ہو
मेरे सामने था, रो धोकर बैठ रही। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया। दरिया के अंदर उसका बड़ा खूबसूरत महल है। खाने और पहनने की कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अकेले रहते रहते भी उगता गई हूँ। इस मुए को कोई मार डाले तो छुटकारा नसीब हो। शहजादा बोला कि मारने को तो मैं मार दूंगा, मगर किस तरह मारूं? तुम कोई तरकीब बताओ। शहजादी ने कहा, कहीं से लोहे का बहुत बड़ा सा मजबूत और भारी सरपोश लाओ। उसके चारों तरफ तेज नोकदार सलाखें लगी हुई हों। उस सरपोश को लेकर दरख्त पर चढ़ जाओ। जब अजहा अपना मन रखकर चला जाए, ऊपर से सरपोश ढांक दो। सारे जंगल में अंधेरा हो जाएगा। अजहा आकर सरपोश पर अपना फन मारेगा, कीलें चुभकर उसे जख्मी कर देंगी, फिर तुम उसको मार देना। शहजादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और घोड़े पर बैठ आबादी की तलाश में चल दिया। रातों रात एक शहर में जा पहुंचा और शाम तक खारदार सरपोश बनवा दरिया के किनारे आ पहुंचा। आधी रात हुई थी कि दरिया में रोशनी हुई। ये सरपोश ले दरख्त पर चढ़ चाकों में छुपकर हो बैठा। अजहा अपने मामूल के मुवाफिक आया और मन दरख्त के नीचे रखकर हवा खोरी के लिए रवाना हुआ। शहजादा मौके की ताक में था, झट सरपोश को ऊपर से लटका मन के ऊपर रख दिया। सारा जंगल गुप्त हो गया। अजहा उल्टे पांव दौड़ा और मन पर सरपोश ढका देखकर उस पर फन मारने शुरू की। जब वो सर पटकते पटकते अधमुआ हो चला तो शहजादे ने दरख्त से कूद तलवार के 2 हाथों में उसकी मुंडिया अलग कर दी। अजहा मर गया तो शहजादे ने सरपोश के नीचे से मन निकाला और उसकी रोशनी में देर तक जंगल की बाहर देखते रहे। सुबह होने लगी। शहजादी शहजादे को लेकर अपने दरियाई महल में चली गई और दोनों बड़े ऐशो आराम के साथ रहने लगे। दिन भर महल में रहते और रात को अजदहे की तरह शहजादा भी शहजादी के साथ दरिया और जंगल की सैर को निकलता। आधी रात से सुबह तक खूब मौज उड़ाते, फूफ हटे ही अपने महल चले आते। होने वाली बात, एक दफा ये दोनों बातों में ऐसे महू हुए कि सूरज चमकने लगा और उन्हें जाने का ख्याल ना आया। सामने से एक गडरिया बकरियों का रेवड़ ले आ रहा था। उसे देखकर ये चौंके और ऐसे बेहवास होकर भागे कि शहजादी की एक जूती पांव से निकल गई। गडरिया हैरान खड़ा यह तमाशा देखता रहा और जब ये दोनों दरिया में गायब हो गए तो जूती उठा सीधा अपने बादशाह के पास पहुंचा। जूती पेश की और जो देखा था सुना दिया। बादशाह जूती को देखकर कहने लगा कि जिसकी जूती इतनी खूबसूरत है वो खुद कैसी हसीन होगी। और उसने कुटनियों को बुला सारा माजरा बयान किया और कहा कि अगर तुमने उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसकी ये जूती है तो तुम्हें मालामाल कर दूंगा, वरना तुम्हारी जानों की खैर नहीं। और तो सबने गर्दनें नीची कर ली, मगर एक कुटनी जो देखने में मर्जियोनी सी मालूम होती थी आगे बढ़कर बोली, सदके गई ये कौन सा मुश्किल काम है। अल्लाह ने चाहा तो एक अठवाड़े में अगर वो परिस्तान में भी है तो उड़ा लाऊं। इतना है कि हुजूर 2-4 घोड़े सवार मेरे साथ कर दे और जो कुछ मैं कहूँ वो करे। बादशाह ने उसी वक्त 4 सवार उसके हमरा कर दी और वो दरिया की तरफ रवाना हुई। कुटनी ने दरिया पर पहुंचकर सवारों को तो जरा ओट में एक तरफ बैठ जाने को कहा और आप किनारे आ पानी में पाँव लटका लहक लहक कर गाना शुरू की। थोड़ी देर थम जाती, फिर गाने लगती। शहजादी ने जो गाने की आवाज़ सुनी तो बेताब हो गई। रात हुई तो वह हाथ में मन लेकर दरिया के बाहर आई और कुटनी से कहने लगी, बड़ी बी तुम यहाँ किधर से आ गए? गाती तो खूब हो, मुझे सिखा दोगी? कुटनी ताड़ गई कि हो ना हो यही वो लड़की है जिसकी बादशाह को तलाश है। उसने जवाब दिया, क्यों नहीं, अगर तुम्हें गाने का शौक हो तो चुटकी बजाते मैं सिखा दूंगी। तुम्हारा घर कहाँ है, वहाँ ले चलो, फिर सुनो भी और सीखो भी। शहजादी कुटनी को हाथ पकड़कर अपने महल में ले आई। कुटनी हैरान थी कि अजीब समात का मकान है, ऊपर दरिया और नीचे महल। दरिया में होकर आए और कपड़े सूखे के सूखे रहे। उसने सोचा कि यह सारी करामात इस पत्थर के टुकड़े की मालूम होती है जिससे रात को तमाम महल भी रोशन हो जाता है और दरिया भी रास्ता दे देता है। अब वो इस टोह में रहने लगी कि किसी तरह उसका भेद पूछना चाहिए। एक दिन दोपहर को शहजादा सो रहा था। कुटनी ने शहजादी को अकेला देखकर कहा, बेटी ये तुम्हारे पास क्या चीज है कि दिन को तो पत्थर सा दिखाई देता है और रात को सूरज की तरह चमकने लगता है। शहजादी बोली, अम्मा इसको मन कहते हैं। कुटनी ने पूछा, वारी जाऊं मन क्या भला होता है? शहजादी ने जवाब दिया, मन पुराने अजदहे के सर में होता है, ये उसकी तासीर है कि हम दरिया में चलते फिरते हैं। कुटनी ये सुनकर चुप हो गई और 2-4 इधर उधर की बातें करके बोली, बेगम आज दरिया के किनारे बड़ा भारी मेला लगेगा, अच्छे अच्छे गाने नाचने वाले आएंगे, खूब सैर होगी, जी चाहे तो चलो मैं तुम्हें ये तमाशा दिखा लाऊं। शहजादे को आज सवेरे से सुला दें, फिर हम दोनों चलेंगे। भोली शहजादी कुटनी के कहने में आ गई और जब शहजादा सो गया तो उसके साथ दरिया पर पहुंच
दरिया से बाहर निकलना था कि कुटनी ने मन तो शहजादी के हाथ से छीन लिया और सवारों को इशारा किया कि इसे बादशाह की खिदमत में ले चलो। बादशाह शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ और हर चंद कोशिश की कि ये कुछ मुंह से बोले, सर से खेले, मगर वो चुप थी, न दाना खाती न पानी पीती, मुंह ऊधा किए पड़ी रहती। बादशाह को बड़ी फिक्र हुई, हजारों तदबीरें की कि किसी तरह उसका दिल बहले और ये शादी करने पर राजी हो जाए, लेकिन एक न चली। जब कई दिन यूं ही गुजर गए तो शहजादी ने दिल में कहा कि इसी हालत में पड़ा रहना मुफ्त में जान देना है, कुछ करना चाहिए। वो शहजादे से वजीरजादे का हाल सुन चुकी थी कि मेरी तलाश में निकला हुआ है। उसने ख्याल किया अगर वजीरजादा यहाँ आ जाए तो कुटनी से मन लेकर शहजादे को दरिया महल से बाहर ला सकता है, वरना वो उधर तड़प तड़प कर मर जाएगा और मैं यहाँ घुट घुट कर जान दे दूंगी। चुनाचे उसने बादशाह से कहा, अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो एक मुसाफिर खाना बनवा दो, उसके दरवाजे पर मेरी तस्वीर लटका दी जाए। शहर में जो मुसाफिर आए वो उसी मुसाफिर खाने में ठहरे और दरबारों को हुक्म हो कि आने जाने वाले मेरी तस्वीर देखकर जो कुछ कहें फौरन मुझे सुना दे। बादशाह शहजादी की इस फरमाइश को बच्चों की सी बात समझा और उसने मुसाफिर खाना खुलवाकर दरवाजे पर उसकी तस्वीर लगवा दी। रोजाना सैकड़ों मुसाफिर आते थे और चले जाते थे, कोई तस्वीर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। खुदा की कुदरत के वजीरजादा भी फिरते फिराते यहाँ आ निकला। आते ही पहली नजर तस्वीर पर पड़ी, हैरत से देखने लगा और बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला कि जिसके कारण इतनी खाक छानी उसने कहाँ आकर दर्शन दिए। वजीरजादे की ये बात दरबार ने उस वक्त शहजादी को जा सुनाई। शहजादी दिल में तो शाद हो गई कि खुदा ने मुराद पूरी की। वजीरजादा आ गया, लेकिन जाहिर में मुंह बनाकर कहा कि वो कौन गुस्ताख मुसाफिर है, उसे फौरन मेरे सामने हाजिर करो। वजीरजादा सामने आया तो शहजादी नौकरों को दिखाने के लिए पहले तो उस पर बहुत खफा हुई और जब नौकर इधर उधर टल गए फिर चुपके से कहने लगी, वजीरजादे, मैं वही शहजादी हूँ जिसे तुम ढूंढने निकले हो। मुझे यहाँ के बादशाह ने नजर बंद कर रखा है और तुम्हारा शहजादा मेरे दरिया महल में कैद है। तुम हिम्मत करो तो मैं भी इस बला से छूटूं और शहजादे की भी जान बचे। शहजादा मन के बगैर महल से नहीं निकल सकता और मन शुता नामी एक कुटनी के कब्जे में है। जिस तरह हो सके वो मन हासिल करो। वजीरजादा शुता कुटनी का पता पूछते पूछते जहाँ वो रहती थी जा पहुंचा। वहां जाकर मालूम हुआ कि वजीरजादे ही की शक्ल का उसका एक बेटा था जो मुद्दतों से गायब है। वजीरजादे ने ये तरकीब की कि बाजार से बहुत सी मिठाइयाँ खरीद कर मोहल्ले के बच्चों को बांटी और उनसे कहा कि शुता के दरवाजे पर जाकर गुल मचाओ के तेरा लड़का आ गया। शुता, तेरा लड़का आ गया। शुता ने जो ये शोर सुना तो झट कुआड़ खोल बाहर आई और पूछने लगी, कहाँ है? अरे मेरा निखट्टू कहाँ है? गली के लड़के बोले, अरे जीदे फूट गए, देख ये खड़ा मिठाई बांट रहा है। शुता वजीरजादे को अपना निखट्टू समझी, गले लगा लिया, अंदर ले गई और बेटे के लिए रोटी पकाने लगी। वजीरजादे ने घर के कोने कोने की तलाशी लेनी शुरू की। एक एक चीज को देखा और पूछा। ताक में एक पत्थर का टुकड़ा रखा था। वजीरजादे ने पूछा, अम्मा ये पत्थर का टुकड़ा कैसा है? कुटनी बोली, बेटा ये मन है, उसमें बड़े वस्फ हैं, रात आने दे, उसकी सैर तुझे दिखाऊंगी। ये सुनना था कि वजीरजादा मन को जेब में डाल और कुटनी से बहाना कर भागम भाग दरिया पर पहुंचा। शहजादी ने सारा हाल तो बता ही दिया था। मन की तासीर से दरिया में रास्ता हो गया। महल में जाकर देखा तो शहजादे की हालत बहुत नाजुक थी, बेहोश पड़ा था। वजीरजादे ने बड़ी मुश्किल से होशियार किया, खिलाया पिलाया, शहजादी की खैरियत सुनाई। जब शहजादे में जरा जान आई तो दोनों सलाह करके अपने मुल्क में गए और शहजादे ने सारा किस्सा बादशाह को सुनाकर कहा कि फिलहाल बादशाह ने मेरी बीवी को दगा से अपने कब्जे में कर लिया है और जबरन उससे शादी करना चाहता है। मैं उस पर चढ़ाई करूंगा और अपनी शहजादी को छुड़ाऊंगा। बादशाह ने समझाया कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं, वो मेरे बड़े भाई का बेटा है और उसे ये खबर होती कि वो तुम्हारी बीवी है तो कभी ऐसा ना करता। अब तुम कोई फिक्र न करो, हम आज ही उसको खत लिखते हैं, इत्मीनान रखो, तुम्हारी शहजादी का बाल तक बेका ना होगा। शहजादे को तसल्ली देकर बादशाह ने उसी वक्त खत लिखा कि दरियाई महल वाली शहजादी तुम्हारी भावच है, अल्लाह ही जाने क्यों कर वो तुम्हारे महल में पहुंच गई। तुम्हारा भाई उसकी जुताई में बहुत बेचैन है, मेहरबानी करके जल्द से जल्द पूरे बंदोबस्त के साथ उसे यहाँ पहुंचवा दो। चचा का खत पढ़कर नौजवान बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। ऐचे की खूब खातिर मुदारत की और जवाब लिखा कि मैं चाहता हूँ भाई साहब खुद यहाँ आए, 2-4 रोज मेरे मेहमान रहे और अपने साथ अपनी दुल्हन को ले जाए। चुनांचे शहजादा और वजीरजादा दोनों शहजादी को लेने रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह रात हो गई। शहजादा एक दरख्त के नीचे सो रहा था और वजीरजादा पहरे पर था कि चकवा चकवी का एक जोड़ा दरख्त पर आ बैठा।
चकवे ने चकवी से कहा, चकवी मालूम है इस दरख्त के नीचे कौन सो रहा है? चकवी ने जवाब दिया, नहीं। चकवा बोला, ये एक मुल्क का शहजादा है, मगर बेचारा बड़ा बदकिस्मत है। बीसियों तकलीफें उठाकर भी चैन नहीं मिला और अभी उस पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब उसकी शादी होगी तो आरसी मुसाहफ के वक्त दुल्हा दुल्हन दोनों पर महल की छत आ पड़ेगी। दोनों गरीब मर जाएंगे और अगर मरने से बचे तो जिस वक्त शहजादा और शहजादी सोने के लिए छप्पर खाट पर लेटेंगे, एक अस्तहा निकलकर दोनों को निगल जाएगा। चकवी अफसोस करके कहने लगी कि अच्छा, इसका कोई इलाज भी है कि महल की छत ना गिरे, और अगर गिरे तो ये दोनों बच जाए? चकवा बोला, हाँ, एक सूरत है। अगर बादशाह महल की छत उतरवा कर उसे फूलों से पटवा दे तो जान बच जाएगी। फिर चकवी ने सवाल किया, छत गिरने से तो यूं बच गए, अजदे का क्या इलाज है? चकवा बोला, अजदे का इलाज उसको मार डालना है, मगर यह ख्याल रहे कि उसका खून दुल्हा दुल्हन पर ना गिरने पाए। अगर एक बूंद भी दोनों में से किसी के बदन पर जा पड़ी तो लाखों सांप पैदा हो जाएंगे और उनसे बचना नामुमकिन है। एक बात और है, वो ये कि अजदे को मारने वाला ये भेद किसी को बता देगा तो फौरन पत्थर का हो जाएगा, और जब तक शहजादी के यहाँ बच्चा ना हो और उसकी उंगली का खून न मला जाए, वो पत्थर से आदमी नहीं बन सकता। वजीर दादा चकवा चकवी की ये बातें सुन रहा था। जब शहजादी को ले आए और माँ बाप की खुशी के लिए शहजादे की शादी होने लगी तो वजीरजादे ने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर, ये ईंट पत्थर की छत उतरवा कर उसे फूलों से पटवा दे। बादशाह बहुत हंसा कि ये अजीब पागलों की सी बातें करता है, लेकिन वजीरजादा कभी मिन्नत करता, कभी खुशामद करता। आखिर बादशाह को भी कुछ ख्याल हो गया और लकड़ी ईंट पत्थर की जगह फूलों की छत बना दी गई। आरती मुसाहफ का वक्त आया, लोग जमा थे, गाना बजाना हो रहा था कि यकायक छत आ पड़ी। अब सब समझे इसमें कोई भेद था। अल्लाह ने बड़ी खैर की। अगर फूलों की छत न होती तो जितने उसके नीचे बैठे होते सारे मर जाते। बादशाह ने वजीरजादी की कमर ठोंकी और उसे बहुत सा इनाम दिया। अब रात आई और शहजादा सोने के लिए अपने कमरे में चला। वजीरजादे को चकवे की बात याद थी। वो भी छुपकर कमरे के एक कोने में जा बैठा। ठीक 12 बजे शहजादा और शहजादी आराम की नींद सो रहे थे कि छप्पर काट के नीचे से एक बड़ा जंगली अजदहा निकला और शहजादे की तरफ फन उठाना ही चाहता था कि वजीरजादे ने लपक कर ऐसा हाथ मारा कि अजदहा वहीं ढेर हो गया। इत्तेफाक से शहजादे का एक हाथ दोशाले के बाहर निकला हुआ था। खून जो उड़ा तो एक छींट शहजादी के हाथ पर पड़ गई। वजीरजादे को और तो कुछ सूझा नहीं, जल्दी से हाथ पकड़ जुबान से वो बूंद चाट दी। शहजादी के हाथ में जो गुदगुदी सी हुई तो उसकी आंख खुल गई। देखा तो वजीरजादा नंगी तलवार लिए खड़ा है। गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्यों आए? ये सांप कैसा मरा पड़ा है और तुमने मेरा हाथ किस लिए छुआ? शहजादा भी उठ बैठा था। वजीरजादे ने बहुत चाहा कि शहजादी असली बात न पूछे, यहाँ तक कह दिया कि हुजूर, इसके भेद खोलने में मेरी जान का जरर है, मैं पत्थर का हो जाऊंगा। लेकिन शहजादी का गुस्सा तेज होता गया। शहजादों को भी वजीरजादे का आधी रात को इस तरह आना बहुत बुरा मालूम हुआ। वो चीख कर बोला, बताता क्यों नहीं? क्या बात है? हमारी बला से तू पत्थर का बन जाए या लोहे का? जिंदगी चाहता है तो सारी हकीकत सच सच कहते, मरता क्या न करता। उसने सोचा कि इस तरह भी मरना है और उस तरह भी। चकवा चकवी की अव्वल से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। वजीरजादे ने यह कहानी खत्म की थी कि वो पत्थर का होना शुरू हो गया। सीने तक पत्थर का बना था कि उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, हुजूर, आपने मुझको नमक हराम समझा, मेरी बात का एतबार न किया। खैर, आप कोई दम में सर से पांव तक मैं पत्थर का हुआ जाता हूँ। अगर हुजूर मुझको दोबारा जिंदा करना चाहें तो जब आपके यहाँ लड़का पैदा हो उसकी उंगली में से जरा सा खून निकाल कर मेरे सर पर टपका दीजिएगा। शहजादा और शहजादी को बहुत रंज हुआ और अपनी बदगुमानी पर बहुत पछताए। पत्थर के वजीरजादे को अच्छी तरह उठवाकर अलग एक कमरे में रखवा दिया, और जब दोनों अकेले बैठते तो अपनी बेवफाई और उसकी वफादारी को याद करते। खुदा खुदा करके वो दिन आया कि शहजादी के यहाँ लड़का पैदा हुआ। शहजादे ने उसकी नन्ही सी उंगली में से खून की एक बूंद निकाल वजीरजादे की सूरत पर डाली। बूंद का पड़ना था कि वजीरजादा कलमा पढ़कर जिंदा हो गया। खुदा ने सबके दिन फेर दी और हंसी खुशी रहने लगी। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।